Good morning, class 1 students. Welcome back. We're gonna do the last topic of this chapter thermodynamics, that is Carnot cycle. It's a very important topic. This is actually the first heat engine which was developed theoretically. Real life नहीं हुआ, theoretically हुआ है. Now, what is this Carnot cycle? This Carnot is a person actually. He discussed or he's given a series of thermodynamic process which happens in a heat engine, and that cycle of series of thermodynamic process is called as Carnot cycle, and the engine which is working on this cycle is called as Carnot heat engine. So basically एक heat engine में क्या क्या चीज होता है वो चीज है actually Carnot cycle. Okay, now so what is Carnot cycle? It is a series of thermodynamic processes, okay, which is happening in a heat engine, an ideal heat engine. Again, I'm saying it is a theoretical paper. This thing is theoretical. Real life में नहीं होता है. For an ideal, that's why it's an ideal heat engine, and that cycle is called as Carnot cycle. And the engine which is working on this type of cycle, theoretically, that is called Carnot heat engine. Okay, now what are the things are present in a Carnot heat engine that we need to understand? First, we have a source. Now, what is a source? Source is a infinitely heat reservoir. इसका मतलब क्या? जैसे for example sun, which is maintained at a particular temperature T1. इसमें इतना heat है कि any amount of heat is taken from this source, its temperature will not change. It will remain as T1. That is called source. इसका infinite heat reservoir है, okay, जिसमें बहुत सारा heat है, इतना heat है कि मैं कुछ हीट अगर ले लूं सोर्स से तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है टेम्परेचर में. नेक्स्ट वी हैव अ सिंक. नाउ व्हाट इज सिंक? इट इज मेंटेन एट सो लो टेम्परेचर T2. इट इज मेंटेन एट वेरी हाई टेम्परेचर T1. इट इज मेंटेन एट वेरी लो टेम्परेचर एट T2. ओके, सच दैट इतना छोटा टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दिस सिंक, हीट जो एब्सॉर्ब करेगा उससे इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा. Clear? So what is source? Maintain a very high temperature such that any amount of heat is taken, its temperature will not change. What is sink? Maintain at such a low temperature that any amount of heat is given to the sink, its temperature will not change. And then we have a insulating pad. Insulating pad है एक तो, ठीक है, एक pad. Okay. Now, so we have source, we have sink, and then we have called as working substance. जिसके जो चीज एक्चुअल में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज रियल गैस, नॉट रियल गैस, आइडियल गैस. ओके, एवरीथिंग आई टोल्ड यू दिस थिंग्स इज इन पेपर. सो आइडियल गैस विल टेक आइडियल गैस इन अ परफेक्टली insulating side walls cylinder. Side walls are insulated perfectly, but the base is perfectly conducting. मतलब बेस से हीट लेना देना हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, साइड से नहीं होता. And has perfectly insulating and frictionless piston. इसके अंदर रियल आइडियल गैस है. Clear? This is the construction of the Carnot engine. Now, what are the process happens? What are the series of cycle happens? How this Carnot cycle consists of? This Carnot cycle consists of 4 processes. The first one is called as isothermal expansion. Next is adiabatic expansion. Next, isothermal compression. And the last one is adiabatic compression. Adiabatic compression. Now, this series which I have written, you cannot haphazard the series. You cannot make it random. It needs to be in a serial order. Hierarchy के तुम चेंज नहीं कर सकते. पहला वाला isothermal expansion है, दूसरा वाला adiabatic expansion है. इसको ऊपर इसको नीचे नहीं कर सकते because it is a process where the first thing which you need to do is isothermal expansion. The next thing which you need to do is adiabatic expansion. The next thing you need to do is isothermal compression. And the next thing you need to do is adiabatic compression. This series you cannot change. Clear? Okay. Now everything from this topic you need to study from the PDF, from the book, where the mark part is there. But I will discuss each and everything here in the book. Okay. Okay. हम क्या कर रहे हैं? Let consider, okay, 1 gram mole of ideal gas. Okay, and initial state
Initial state is P1, V1 and T1 that is equal to the temperature of source. Initial state of the ideal gas is P1, V1, T1. ठीक है, ये है कंडीशन. इसमें अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे. Now, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स लिसन वेरी केयरफुली. ये जो वर्किंग सब्सटेंस था यहाँ पे, जो आइडियल गैस था इस सिलेंडर के अंदर था, जो कि साइड से इंसुलेटेड है, बेस से परफेक्टली कंडक्टिंग है, उसका इनिशियल स्टेट ये है. इसको मैं क्या करूंगा, सोर्स में रखूंगा. ओके, दीज थिंग्स आर मार्क्ड हियर. इसको मैंने सोर्स में रखा. क्लियर क्लास, इसको मैंने सोर्स में रख दिया. इसका इनिशियल से P1, V1, T1 है और इसको मैंने एक्सपैंड किया स्लोली. स्लोली क्यों एक्सपैंड किया क्लास, क्योंकि मुझे आइसोथर्मल करना है. ठीक है, एक्सपैंड करके क्या होगा, दिस इज सोर्स, मेंटेन टेम्परेचर T1. इसको एक्सपैंड करके मैंने प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 कर दिया. सॉरी, टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, वेरी सॉरी. एक्सपैंड किया, एक्सपैंड स्लोली किया. जब मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इसका हीट कंटेंट लॉस होगा. सो ये कुछ हीट सोर्स से ले लेगा फ्रॉम द कंडक्टिंग बेस. ओके, सच दैट इस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट T1, T1. अंडरस्टूड क्लास? ओके, this is the thing happening in isothermal expansion. Now, if I want to plot this in a PV diagram, let's draw PV diagram of this whole cycle. एक एक करके बात करते हैं, ठीक है ना. मान लो ये है कंडीशन P1, V1, T1. This is the condition of the gas. ओके, इसको एक्सपैंड किया तो एक्सपैंड करने से प्रेशर घट जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये देखो, प्रेशर घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया. P2, V2, T1. प्रेशर देखो यहां था, प्रेशर घट गया, वॉल्यूम यहां था, वॉल्यूम बढ़ गया. समझ में आ गया? तो दिस इज द ग्राफ AB. AB is the isothermal curve for this process. Isothermal curve is AB or isothermal graph is AB. Then in this graph, two things happens. That some amount of work is done, W1. This is the work done by the gas. राइट क्लास, ठीक है, एक्सपैंड हुआ. तो ये जो वर्क डन बाय द गैस हुआ, ये आइसोथर्मल वर्क डन हुआ. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RT log बेसिक फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम. यही फॉर्मूला है. यहाँ पे T1 होगा. दिस इज ओनली द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब Q1. तो ये फॉर्मूला समझ में आया, कहां से आया क्लास? These all formulas we need at the end. Let me see whether it's coming on the board or not. Yes, it's coming on the board. Fine. Okay. So in this process, some amount of isothermal work done is done. तो isothermal work done का फॉर्मूला मुझे पता है, RT log V final by V initial. V final is V2, V initial is V1, temperature is T1. Clear? And this is only amount of heat absorbed from the source. Okay. Now my working substance reached to this state, P2, V2, T1. Now what will happen? Now we'll go for the adiabatic expansion. The next process will happen. Adiabatic expansion. अब adiabatic expansion में क्या होगा, इस सिलेंडर को जिसमें मेरा वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस इस स्टेट में था, इसको इंसुलेटिंग पैड में डालूंगा. एडियाबेटिक, फ्रॉम nowhere heat connection, मतलब from where the heat connection in this cylinder, only from the downward. So when I place this in the insulating pad, तो नीचे से भी insulated हो गया, so no way heat will exchange. That's why we'll put this in an insulating pad now. Okay class, so we are putting it in insulating pad where the initial state now is what? P2, V2, T1. Now it is expand further class. इसको मैंने फर्दर एक्सपैंड किया, इंसुलेटिंग पैड में डाल के इसको मैंने फर्दर एक्सपैंड किया. अब देखते हैं, फर्दर एक्सपैंड किया तो प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 आ जाएगा. अब टेम्परेचर को क्या होगा, अब मैं जब एक्सपैंड करूंगा इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. राइट क्लास? एक्सपैंड करने से क्या होता है, एक्सपैंड करने से सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम टू मूव, so less collision will happen and this temperature will decrease. Okay,
और हीट पहले भी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन हीट ले लिया ना इसने सोर्स से, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब तो हीट लेने का कहीं भी जगह नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, आई विल एक्सपैंड टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स टेम्परेचर ऑफ सिंक, डिक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ द सिंक। क्लियर, समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो फर्दर फिर से एक्सपैंड कर रहा हूं, प्रेशर विल फर्दर डिक्रीज, प्रेशर विल फर्दर डिक्रीज लाइक दिस। ये हो गया P3 V3 एंड टेम्परेचर T2 हो गया। देखो प्रेशर यहां था P2, प्रेशर और घट गया, नीचे आ गया, वॉल्यूम और बढ़ गया, V3 हो गया। क्लियर? सो BC is the adiabatic expansion curve. In this process, again some work is done by the gas, वो W2 expand हुआ, work done by the gas। लेकिन ये कौन सा वर्क डन है? एडियाबैटिक वर्क डन है। एडियाबैटिक वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? R by 1 minus gamma T final minus T initial। Final temperature is T2, initial temperature is T1। Clear class? Okay, now this working substance will go for the third job। What is the third job? Isothermal compression। अब ये isothermal compression होगा। now ये कैसे होगा? अब इसको मैं सिंक पे डालूंगा और कंप्रेस करूंगा, ठीक है? कहां डालूंगा? सिंक पे। So whenever I try to compress it, its temperature will increase, but we need to maintain the temperature। okay, so अब क्या होगा? इसको मैं सिंक पे रखा, which is maintained at temperature T2। तो दिस वाज द स्टेट, इनिशियल स्टेट P3 V3 T3। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं स्लोली। ओके, तो व्हेन आई ट्राई टू कंप्रेस इट, व्हाट विल हैपन? क्लास, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लो इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, प्रेशर विल बिकम P4, वॉल्यूम घट जाएगा V4, राइट? बट व्हेन आई कंप्रेस, its temperature will increase, but whatever the heat content increases, it is transferred to sink, so that its temperature will remain constant T2। अरे भाई टेम्परेचर T3 थोड़ी है, T2 है। टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं, जो हीट कंटेंट बढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा हीट कहां चला जा रहा है? सिंक में दे रहे हैं, Q2। सो द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। सो अब क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, बिकॉज कंप्रेस हो रहा है ना, तो प्रेशर विल इंक्रीज। सो नाउ इट विल गो टू समवेयर, ये रहा। ओके, सी प्रेशर पहले P3 था, अब प्रेशर P4 हो गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम पहले यहां था, वॉल्यूम घट गया, कंप्रेस हुआ। तो दिस इज द सिचुएशन G, वेयर इट इज व्हाट? प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, बट टेम्परेचर इज T2। So isothermal expansion, temperature remains constant. So CD is the isothermal compression curve or isothermal compression graph। Okay, in this case there is some work done on the gas W3। ये वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, समझ में आया क्लास? ओके, बिकॉज कंप्रेस हो रहा है। ये सब वर्क डन बाय द गैस था, ये वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। तो आइसोथर्मल वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है? RT log V final by V initial, V final by V initial, V4 V3, but temperature कौन सा है? T2। temperature is constant T2, and this is only amount of heat released Q2। ओके क्लास, इतना समझ में आ गया? नाउ आई विल पुट दिस फॉर द फोर्थ स्टेप, दैट इज adiabatic compression। I will further compress now, but adiabatically। ओके, अब जब adiabatic compress करने जा रहे हैं, तब इसको फिर से adiabatic करना है, मतलब चारों तरफ से इंसुलेट होना चाहिए, मतलब इसको मैं फिर से इंसुलेटिंग पैड में डाल दूंगा। ठीक है क्लास, इंसुलेटिंग पैड में डाला, ये है कंडीशन ऑफ द गैस P4 V4 T2। ओके, इसको मैं फर्दर कंप्रेस किया एंड गोज टू इट्स इनिशियल स्टेट। कंप्रेस करते करते मैं इसके इनिशियल स्टेट में लेके आ रहा हूं इसको, इंसुलेटिंग पैड, ये याद करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ साइकिल, इट विल गो टू द इनिशियल स्टेट। मैं इसको फर्दर कंप्रेस किया, गलती हो गया क्लास, कंप्रेस मतलब और छोटा होना चाहिए। सो व्हेन आई फर्दर कंप्रेस इट, नाउ इट्स इनिशियल स्टेट, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, एंड अब जब मैं कंप्रेस करूंगा
ओके, जब मैं कंप्रेस किया इसमें हीट कंटेंट बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे हीट कंटेंट बढ़ गया था, बट दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट वाज गिवन टू द सिंक, सो इट्स टेम्परेचर वाज रिमेन कांस्टेंट. बट नाउ we cannot give it to anyone because it is insulated from all sides, so its temperature will increase and it will go to the initial temperature T1. तो हम तब तक कंप्रेस करेंगे जब तक इसका इनिशियल स्टेट ना पहुंच जाए P1 V1 T1. क्लियर क्लास? अंडरस्टैंड? तो इसको फर्दर कंप्रेस किया एंड इट विल गो टू द इनिशियल स्टेट P1 V1 T1, दैट इज DA. तो ऐसा करके कर्व बनता है क्लास. ओके, देखो प्रेशर बढ़ गया, फर्दर वॉल्यूम भी घट गया, फर्दर कंप्रेस किया, वॉल्यूम घट गया. पहले V4 यहां था, अब V1 यहां पे है, V4 से V1 इधर चला गया. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो लेट्स टॉक अबाउट इट. हाँ, ये A है, ये B है, इसका प्रेशर ये रहा P1, इसका प्रेशर ये रहा P2. प्रेशर घट गया ना, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, वॉल्यूम बढ़ गया ना, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. क्लियर? अंडरस्टूड क्लास? आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया. इस तरह से मैं बोलता हूँ वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया. और तुम और एक चीज याद कर सकते हो, याद होना चाहिए, लाइक व्हेन वी एक्सपैंड इट प्रेशर डिक्रीजेस, ओके, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, एवरीवन नोस. व्हेन वी कंप्रेस इट प्रेशर इंक्रीजेस. तो अब मैं फर्दर अगर मैं यहां से यहां का बात करूं, B to C का बात करूं, ओके, तो इसका प्रेशर ये था, इसका प्रेशर ये था, प्रेशर फर्दर डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज फर्दर इंक्रीजिंग. सी, and the area under this graph with this is called the Vogel. That means area under AB graph, यहां से जो एरिया दूंगा that is nothing but this Vogel. Area under BC graph, that is nothing but this Vogel. Area under CD graph, यहां से यहां तक, that is nothing but W3 Vogel. And area under DA graph, and that is nothing but adiabatic Vogel. Okay class, I hope you understand what are the things going on in this whole Carnot cycle. So the last process understood. Now in this case also some of the work is done on the gas. On the gas कुछ work done हो रहा है. That is W4. Right class? तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं. चलो. So on the gas जो work done हो रहा है वो क्या होता है? Minus, and is adiabatic work done minus R by 1 minus gamma. ऐसे होता है. Final temperature minus initial temperature. T1 final temperature, initial temperature T2. Clear class? समझ में आया ना सब कुछ अच्छे से? क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्नोट साइकिल. These are the 4 processes happening in a Carnot cycle. Clear class? Okay. So it will be T1 minus T2. बुक पे थोड़ा गलत था तो मैंने चेंज कर दिया उसको. If you can see nicely, मैंने चेंज कर दिया है क्लास इसको. Okay. Okay. So we understand what is the Carnot cycle, what are the different processes happening. If you don't understand, please repeat the video again. Now कैसे याद रखना है इसको? तुम्हें ये 4 चीज याद रखना पड़ेगा. आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, द ऑर्डर यू नीड टू रिमेंबर. याद रखना पड़ेगा. आइसोथर्मल करने के लिए मुझे या तो सोर्स है तो सिंक में रखना पड़ेगा. एडियाबैटिक करने के लिए मुझे इंसुलेटिंग पैड में रखना पड़ेगा. ठीक है? एंड यू हैव टू रिमेंबर द ग्राफ. अगर तुम्हें ये 4 प्रोसेस ऑर्डर में याद है और तुम्हें ग्राफ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, then you can write these things in your own language class. So in the book they have written in the form of wordings. I have shown in the form of figures कि क्या 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 हो रहा है. So you remember in any way. Okay, but you cannot make these figures in the examination. You have to write in the English क्या क्या हो रहा है. Like इस केस में क्या हुआ? The initial state of the gas was P1 P1 P1. It is placed on a source and expands slowly. Okay, understood? To expand slowly to P2 V2. Now, since while expansion some amount of heat is lost, that heat is taken from the source, so that the temperature remains constant T1. Okay. In this process, some amount of work is done by the gas, and that is only equals to the heat taken from the source. Okay. Okay. Now, in this whole process, there are 2 times work is done by the gas, and 2 times work is done on the gas. So we need to identify how much amount of work is done by the Carnot engine. Work is done by the Carnot engine. ये क्या है? Carnot engine ही है ना? यही तो है Carnot engine. Working substance यही तो है. तो 2 बार Carnot engine ने काम किया और 2 बार Carnot engine में काम हुआ. तो net work done क्या हुआ? Okay, so ये engine है तो net work done by the gas हुआ होगा. Okay, by the Carnot engine हुआ होगा. वो हमें निकालना है.
एंड वॉट एवर द वर्क डन वी आर कैलकुलेटिंग, दिस वर्क डन इज फॉर पर साइकिल। ये पूरा एक साइकिल है, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा ऐसे करके कंटिन्यूसली, एंड दिस वे हीट विल एनर्जी विल कम। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड नाउ वर्क डन पर साइकिल निकालने का बाय द इंजन। ओके, बाय द इंजन। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल। एक एक साइकिल का टोटल वर्क डन क्या है? W1 प्लस W2, total work done by the gas. Similarly, if I say total work done on the gas, if I want to say per cycle, on the gas कितना हुआ? W3 plus W4 on the gas जो हुआ। Therefore, what is net work done by the gas? Total by the gas minus on the gas, that is net work done by the gas मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो पर साइकिल में 2 बार बाय द गैस ने वर्क डन किया और 2 बार ऑन द गैस वर्क डन हुआ। तो बाय द गैस कितना होगा? टोटल बाय से ऑन को माइनस कर दो, तो W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। ओके, नाउ हियर चेक आउट W2 एंड W4। अच्छे से देखो, W2 और W4 को देखो, दे आर सेम। अगर मैं माइनस साइन को अंदर इंटू कर दूं तो ये भी आ जाएगा T2 माइनस T1 आएगा। So W3 and W4, sorry, W2 and W4 are equal. So what I got? W1 minus W3. That is net work done by the gas or net work done by the Carnot engine per cycle. Okay, net work done by Carnot engine per cycle. This is W1 minus W3. That's nothing but, can I say, Q1 minus Q2? Because W1 is equals to Q1 and W3 is equals to Q2. So we got Q1 minus Q2. Understood, class? This is the net work done by the Carnot engine per cycle. Now we are interested in what is efficiency of this device. Efficiency of the Carnot engine कितना है? What is the expression of this efficiency? Now जब भी मैं efficiency पता करता हूं, ध्यान से सुनना, it is always output by input। ठीक है, ऑलवेज एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। इस पूरे साइकिल में क्या आउटपुट है ये पता कर लो और क्या इनपुट है ये पता कर लो, कितना इस इंजन ने दिया और कितना लिया। ओके, नाउ क्या दिया? वर्क डन दिया, दिस इज द वर्क डन पर साइकिल। ओके, लेकिन क्या लिया? व्हाट द इनपुट इट हैज कंज्यूम्ड, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके क्लास, सो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन क्या है भैया? एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। ये आउटपुट क्या दिया हमको? इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया, लिया। इस पूरे प्रोसेस में उसने, इफ आई से कार्नोट इंजन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्किंग सब्सटेंस, उसने इस पूरे प्रोसेस में कुछ लिया ना? लिया, इतना हीट लिया ना सोर्स से। ओके, सो डिवाइडेड बाय Q1, दिस इज द अमाउंट ऑफ इनपुट ही कंज्यूम्ड। इतना एनर्जी उसने हीट लिया, कहां से लिया? सोर्स से लिया। बाकी कहीं भी उसने कुछ लिया नहीं, उसने सिर्फ दिया है। ये देखो, इसमें दिया है, लेकिन टोटल कितना दिया है? W, नेट कितना दिया है? W, और लिया कितना? Q1। सो W by Q1 इज द एफिशिएंसी। सो व्हाट इज W? Q1 minus Q2 by Q1. So we got the efficiency expression is 1 minus Q2 by Q1. मुझे मिल गया efficiency का expression. Clear? But when we try to do numericals, okay, in the numericals we don't know what is the amount of heat taken from the source, what is the amount of heat given to the sink. We know temperature of source and temperature of sink. So what my next job is? My next job is to convert this efficiency expression in terms of temperatures. Source and sink का temperature के फॉर्म में convert करना है. Clear? Class? Understood? मुझे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So for that, what we'll do, I will rub this thing and teach you how to convert. So see, efficiency expression I got, but I am interested in this efficiency expression in terms of source and sink temperature. T2 and T1 के फॉर्म में चाहिए, मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए क्लास. So for that, we'll do something extra that you need to understand. Okay, so class, what is my job? My job is to convert this efficiency expression in terms of temperatures. So for that, what we'll do, we'll convert Q2 by Q1. तो पहले हम देखते हैं Q2 by Q1 है क्या. तो पहले ये बात करते हैं. पहले Q2 by Q1.
ये तो मैं भूल गया, मैंने रब अप कर दिया, गलती हो गया बेटा। ओके, ये Q2 क्या था भैया? Q1 is the amount of heat taken from the source and Q2 is the amount of heat given to the sink. ओके, ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला क्या था? R T1 log V final by V initial। तो A to B में फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, उसको देख के मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है ना क्लास? डिवाइडेड बाय Q1, इधर Q1, ओ माय गॉड, सॉरी बेटा, RT2 माइनस, क्योंकि ये मैं कंप्रेशन वर्क डन कर रहा हूं ना, कंप्रेशन वर्क डन। फाइनल टेम्परेचर इज T2, V4, इनिशियल वॉल्यूम इज V3। तो फाइनल वॉल्यूम इज V4, इनिशियल वॉल्यूम इज V3, सब कुछ उस फिगर से दिखेगा मेरे को। V4 V3 कंप्रेशन वर्क डन है, इसलिए माइनस। Q1 एक्सपेंशन है, सो RT1 log final volume by initial volume. So A to B is the isothermal expansion and C to D is the adiabatic isothermal compression. तो इस केस में Q1 वो ले रहा था और इस केस में वो Q1 Q2 सिंक को दे रहा था। तो मुझे Q2 by Q1 चाहिए, तो Q2 का वैल्यू लिख दिया मैंने। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले मैंने जो लिखा था वहीं से मैं लिख रहा हूं। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि फ्रॉम दिस ग्राफ हाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन। तो Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब आइसोथर्मली, एक्सपेंशन है इसलिए प्लस R टेम्परेचर इज T1, RT log V final by initial, ये फॉर्मूला होता है ना। तो V final इज V2, V initial इज V1। नाउ Q2 कंप्रेशन वर्क डन है, तो माइनस R टेम्परेचर इज T2, V final by V initial। सो फ्रॉम द वर्क यू अंडरस्टैंड, ये कर गया। ओके, अब मैं इस माइनस को हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा देखूंगा। T2 log V3 by V4 डिवाइडेड बाय T1 log V2 by V1, ये आ गया फाइनल कंडीशन। ये माइनस ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, log of x to power n is equals to n log x। सो ये जो आगे वाला ये ऊपर चला जाता है, तो आगे क्या है? -1 है, तो ऊपर चला जाएगा -1, तो ये पलट जाएगा V3 by V4। सो दिस इज Q2 by Q1। नाउ माय जॉब इज टू कैलकुलेट दिस। ये क्या है? इसके लिए बेसिक फंडा क्या है बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। की बेसिक फंडा ये है, what we'll do, we will take all the process and we will apply the equations. Like for isothermal process, we will apply isothermal equation. For adiabatic process, we will apply adiabatic equation. Okay, and then we will multiply all the equations. तो वो किस लिए? ये चीज निकालने के लिए, relation between these things. So what I will do, first A B में जाते हैं, which is a isothermal, A to B। तो A to B में final condition is P2 V2। तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1 equals to P2 V2, that is P into V equals to constant। ये होता है आइसोथर्मल इक्वेशन। तो फाइनल P2 V2 equals to initial P1 V1, this is equation number 1। next we will go to adiabatic, that is from where to where? B to C, BC, that is adiabatic। in case of adiabatic the equation is P V2 पर gamma equals to constant। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल वैल्यू लिखा है, राइट हैंड साइड पे इनिशियल वैल्यू लिखा है। तो यहां भी हम इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं ना, आई कैन राइट P1 V1 equals to P2 V2, that also we can do, right? So what I'm trying to say is that if you have written the first equation left hand side as the final condition, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल कंडीशन लिखो। So B to C, what is the final condition? P3 V3। So we'll write final condition in the left hand side, P3 V3 to power gamma equals to P2 V2 to power gamma। This is equation number 2। तुमने एक इक्वेशन में यहां पे तुमने फाइनल वैल्यू लिखा है, यहां पे फाइनल स्टेट, यहां पे इनिशियल स्टेट लिखा है, इसको उल्टा लिखा है, यहां पे इनिशियल स्टेट, यहां पे फाइनल स्टेट लिखा है, तो गलत हो जाएगा क्लास। सो ऑलवेज फॉर ऑल द इक्वेशंस लाइक राइट लेफ्ट हैंड साइड एज द फाइनल कंडीशन, फाइनल स्टेट, B to C में C इज द फाइनल स्टेट। ओके, नेक्स्ट 3। अब कहां से कहां जाएंगे? C to D। C to D क्या है? आइसोथर्मल है, दिस वी नो। C to D is isothermal, that is isothermal compression। तो आगे इसका फाइनल कंडीशन क्या है? P4 V4 is equals to P3 V3, this is equation number 3। and the last one is D to A, again it is what? Adiabatic में D to A is the final condition, P1 V1 to power gamma equals to P4 V4 to power gamma, this is equation number 4। now what your job is? Your job is to multiply all the equations। okay, let me do all those things on the board first। No, I'm thinking to do it with you. Okay,
multiply all the LHS. P2 V2 into P3 V3 to the power gamma into P4 V4 into P1 V1 to the power gamma equals to multiply all the RHS. P1 V1, P2 V2 to the power gamma, P3 V3, P4 V4 to the power gamma. देखो P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 कर लिया. ओके, अब मुझे इनका कॉम्बिनेशन बनाना है V3 V4 V2 V1. तो V3 V4 का कॉम्बिनेशन बनाओ और V2 V1 का कॉम्बिनेशन बताओ. तो V3 V4 एक तरफ रखो, ये रहा V3 टू पावर गामा V4, यहां से V3 लेके आओ, ये रहा V3 V4 टू पावर गामा. ठीक है क्लास. और एक तरफ समझ में कैसे करना है, यहां से देख के समझ में आ रहा है कि V3 V4 एक साथ चाहिए, V2 V1 एक साथ चाहिए. तो यहां पे क्या है V1 V2 V2 पर गामा, ये इधर जाएगा V2 V1 टू पर गामा. तो यहां से क्या दिख रहा है मेरे को, मुझे V3 by V4 चाहिए, तो V3 टू पर गामा -1 by V4 टू पर गामा -1. समझ में आया. V3 गामा नीचे पावर 1 है, ऊपर गया -1, V4 गामा ऊपर पावर 1 है, नीचे आया -1 इक्वल्स. यहां पे क्या चाहिए. सो एवरीथिंग आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा बेटा, बुक्स में अलग किया हुआ, पहले ये सब किया हुआ है, उसके बाद तुमने ये किया. लेकिन नहीं, मुझे सपना थोड़ी आएगा मुझे क्या निकालना है. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड Q2 by Q1 क्या है, एंड देन वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस. सो यहां पे क्या हो जाएगा, मुझे V2 by V1 चाहिए, तो V2 टू पावर गामा -1 गामा नीचे 1 V1 टू पावर गामा -1. देखो तो ध्यान से, V3 by V4 टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू V2 by V1 टू द पावर गामा -1. पावर सेम है, मतलब बेस भी सेम होगा. V3 by V4 इक्वल्स टू V2 by V1. दोनों इक्वल हो गया. दोनों अगर इक्वल हो गया तो दिस थिंग विल कैंसल आउट. ओके, देयरफॉर व्हाट इज Q2 by Q1 इक्वल्स टू T2 by T1, because this thing will cancel out because they are equal. We have proved they are equal. Clear class? So therefore what is the efficiency expression now? Efficiency will be equal to 1 minus T2 by T1. Okay, job is done. Understand? You understood about Carnot engine and Carnot cycle class. Okay, then after that in the PDF you have received one more PDF where everything is discussed in the PDF, all the mark part. There is one more few discussions you need to understand, like Carnot engine का efficiency 100% है, लेकिन रियल लाइफ में 100% नहीं हो सकता. ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता, किससे नहीं हो सकता, ये सब जानना जरूरी है. तो ये कुछ चीजें मैंने मार्क किया, प्लीज रीड दोस थिंग्स and please talk to me if you have any doubt. Okay, like for example मैं थोड़ा बुक के लैंग्वेज की बात करता हूँ. like what are the things I have defined. मैं बोलूँ efficiency 100% है, इसका मतलब efficiency 1 है. तो what is efficiency? 1 minus T2 by T1, तो 1 T1, तो कितना है, T2 by T1 0 आया. ठीक है ना, T2 by T1 0 आया. इसका मतलब दो चीज है, T2 0 केल्विन होगा, 0 होगा, और T2 by T1. तो यहां से और एक मैं ऐसा लिख सकता हूं, T1 इक्वल टू T2 by 0 इंफिनिटी. दो चीज समझा रहा हूं, देखो 0 into T1 0 और T1 इक्वल टू T2 by 0 इंफिनिटी. ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में. इनफाइनाइट हीट सोर्स पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट टेम्परेचर नहीं हो सकता कभी. सो इसलिए ये सब रियल लाइफ नहीं है बेटा. यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल थियोरेटिकल लाइफ. दिस थिंग्स आर मेंशन्ड टू यू. ओके, cannot have a 100% efficiency. अगर 100% efficiency डाल दूंगा तो ऐसा आएगा, और ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. हमने थियोरेटिकली पढ़ा है क्लास. ओके, सिमिलरली दूसरा क्या दिया हुआ है, Q2 by Q1 equals to T2 by T1. T2 cannot be equals to 0, Q2 cannot be equals to 0. पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही. ओके, प्लीज गिव अ रीड एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्नोट थ्योरम. Again, please give a read. These things may ask as a theory question class. This is the end of the theory of the thermodynamics chapter. In the next video, we will come across the numericals related to Carnot engine. Okay, class? That's all. Thank you very much.